how should we plan our life? How should we design our life? How should we organize our life? What areas should we consider when we sit down to plan our life, to chalk out a detailed plan of making our life successful? A lot of us keep thinking about these questions and look for resources to help, but unfortunately most of us are unable to sort of really design our lives well and then make them successful. And incidentally, the educational system also leaves out critical areas from the conversation. So today we are going to talk about 7 key areas of life to consider when you are planning your life, when you are designing your life, when you are organizing your life to make your life successful. So stay tuned. My name is Fayaz and I welcome you again to Imagine Ecological Entrepreneurship podcast, another episode of this series. And we had an earlier episode about how to design a regenerative lifestyle, एक कामयाब तर्ज ज़िंदगी कैसे बनाएं. तो उस कॉन्वर्सेशन में, उस एपिसोड में हमने ज़्यादा बात की थी अपने इंटरनल अंदरूनी सोच कैसे बदलें, हम अपने चीज़ों की समझ कैसे बदलें, सोच कैसे बदलें, हम अपनी आदतें कैसे बदलें टू बिकम सक्सेसफुल. एक पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट्री हैबिट्स कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव हैबिट्स जो हमको कामयाबी की तरफ ले जाएंगे. तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे एक्सटर्नल ली. जब हम बैठेंगे प्लान करने के लिए, एक इफ़ वी वांट टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल, कामयाब ज़िंदगी जीने के लिए, तो हम किन एरियाज़ पे फोकस करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगे. तो काफ़ी सारी, अगेन इसके बारे में भी काफ़ी लोगों ने काम किया है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और काफ़ी सारे डिफरेंट लेंसेज लोग यूज़ करते हैं. और मैंने भी काफ़ी सारे चीज़ों का मुताला किया है. आई sort of researched quite a bit about this, and मेरे हिसाब से there is this lens of dividing our life into 7 critical areas. और उन 7 areas में जब डिवाइड करेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, 7 areas हैं, तो easily manageable है. दूसरा, जब इन 7 areas में डिवाइड करते हैं तो हमारी सारी जो क्रिटिकल नीड्स हैं और बेसिक नीड्स हैं और वो पूरी हो जाती हैं. जो हमारा ज़िंदगी का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए ये जो दुनिया में आने का हमारा पर्पज़ है, वो पूरा हो जाता है. तो these 7 areas are spiritual. I think first and foremost we need to understand who we are and why we are here and what we are supposed to do. तो ये what is the experiment of life all about. तो spiritual. Then the mental engagement, we are supposed to be creative, we are supposed to grow all the time. So spiritual, mental or creative engagement. Then third is the work, career, or how do you exchange value, so तीसरा, चौथा is financial. आप because you need money to function in this world, and or wealth. So it is not only money but wealth. There are other ways and means to accumulate wealth and become sort of prosperous. And then the 5th one I would say is relationships. चाहे हमारी पर्सनल, हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारी फैमिली रिलेशनशिप्स, क्लोज रिलेशनशिप्स जो भी हैं. एंड फिर फिज़िकल हेल्थ एंड वेलबींग, ये बहुत क्रिटिकल एरिया है. एंड देन 7th आई वुड से इज़ द सोशल इन्फ्लुएंस. ऑल ऑफ अस वांट टू बी एन एग्जाम्पल, एंड हमने पहले भी एक आध और एपिसोड में बात की है कि हाउ ऑल ऑफ अस आर इनहेरेंटली सपोज टू बी टीचर्स, बिकॉज यू आर लिविंग दिस लाइफ, यू आर एग्जाम्प्लीफाइंग थिंग्स फॉर अदर्स, because others are interacting with you and you are interacting with others, so you are setting an example of your own. So that way, तो
social influence. So let me just quickly recap: spiritual, mental, work or career, financial, relationships, physical health and well-being, and social influence. तो अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में और बात करते हैं quickly. Spiritual, as I said, is we are a special creation of the universe. I have said this before as well. जो cultural wisdom है and latest scientific discoveries जो हैं, वो दोनों अब मुत्फिक हो गई हैं कि इंसान एक स्पेशल क्रिएशन है. इंसान, वो जो बंदर से बनने वाला फार्मूला था, वो अब निकाल दिया गया है साइंस से, वो प्रूव नहीं हो पाया है, तो वो थ्योरी हटा दी गई है. तो अभी की जो थ्योरी है लेटेस्ट, वो है कि इंसान एक स्पेशल क्रिएशन है. तो हमारे अपने कल्चर में जो हमको बोला गया हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो वो अब साइंस भी उस से एग्री कर रहा है. तो उस अंडरस्टैंडिंग से कि हम कुदरत की बेस्ट क्रिएशन हैं, तो वी आर meant to do God's work, we are meant to take forward the evolution, we are meant to solve problems, take on challenges, take forward the evolution. तो ये मेरा मानना है, this is my spiritual understanding. और there is life after death again. तो वो ये आपको सॉर्ट करना पड़ेगा, अपने लिए असर्टेन करना पड़ेगा, व्हाट आर योर स्पिरिचुअल नीड्स एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ स्पिरिचुअली. तो ये एक एरिया है. तो दूसरा जो है काम का और मेंटल एक्सरसाइज का, तो हमको ये जो ब्रेन है हमारा, ये जो हिस्सा है और हमारा दिल है, ये काफ़ी वसी ऑर्गन है. काफ़ी इनके ऊपर भी काफ़ी सारा काम लोगों ने किया है. तो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द ब्रेन वर्क्स, हाउ द हार्ट वर्क्स और हाउ द गट वर्क्स. तो ये जो हैं बहुत, इनकी कैपेसिटी अनलिमिटेड है और बहुत क्रिएटिव ये काम कर सकते हैं. तो इनको एंगेज करना और वो उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना हमारे लिए ज़रूरी है. बिकॉज़ अगर हम नहीं करेंगे तो हम परेशान रहेंगे. क्योंकि अगर आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर आप एक ज़रख़ैज़ ज़मीन के टुकड़े पे कुछ नहीं बोएंगे तो उसमें उगेगा क्या? तो मोस्ट लाइकली उसमें वीड्स उगेंगे या और बहुत अच्छे से उगेंगे, तो जो हमारे लिए मुज़र है. तो इसलिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम उस ज़रख़ैज़ ज़मीन के टुकड़े में कोई वो बीज बोएंगे जो हम चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से उगेगा, हमें बहुत अच्छी फसल मिलेगी. तो इसी तरह हमारा जहन है. तो जो क्रिएटिविटी है हमारे दिमाग की, इसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है. और हमको इसको पर्पसफुली इस्तेमाल करना है, किसी मकसद के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, जो अगेन हमारी अपनी ख्वाहिशात, हमारी अपनी डिज़ायर्स, हमारी अपनी स्पिरिचुअल नीड्स, मेंटल नीड्स और बाकी जो ज़रूरियात हैं हमारी, उनके हिसाब से उनको पूरा कर सके, वैसे पर्पज़ के लिए हमको इसको इस्तेमाल करना है. और उससे कनेक्टेड है फिर काम. हम लोगों काम क्या करें ताकि हम लोगों के साथ कोई चीज़ एक्सचेंज करें, ताकि हम लोग अपना कोई करियर डिज़ाइन करें, कोई कंट्रीब्यूशन करें दूसरों की लाइफ में, अपनी सोसाइटी में, और उसके बदले में हम मुआवजा हासिल कर सकें जो कि हमारी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सके, हम अपनी पैसा कमा सकें, हम वेल्थ बिल्ड कर सकें, हम बाकी जो हमारी ज़रूरियात हैं और ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें. तो मेरे अंदाज़े में जो मेंटल क्रिएटिविटी है और जो हमारा काम है, करियर है, जो वैल्यू एक्सचेंज हम करना चाहते हैं, दे गो हैंड इन हैंड.
और जितना ज़्यादा हम सर्विस दे पाएंगे उतना ज़्यादा हमको रिवॉर्ड मिलेगा। तो फाइनेंशियल गेन जो होगा या वेल्थ गेन जो होगा वो भी उसके प्रोपोर्शनेट होगा। तो जितने ज़्यादा लोगों को हम सर्व करेंगे उतना ज़्यादा हम कमा सकेंगे। तो फिर हमारा रिलेशनशिप्स मीन हम ऐसी करामात हैं कुदरत की कि जो अकेले रहने के लिए नहीं आए हैं। हम रह सकते हैं अकेले एज एन एक्सपेरिमेंट, मगर जो जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है और जिस तरह का जो हमारा डिज़ाइन है उसमें वी आर मेंट टू हैव रिलेशनशिप्स। जैसे हम पैदा होते हैं तो हमको दूसरों की ज़रूरत रहती है, माँ की ज़रूरत होती है, बाप की ज़रूरत होती है, बहन भाइयों की ज़रूरत होती है। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं तो और लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा डिज़ाइन ही ऐसा है कि वी आर मेंट टू हैव रिलेशनशिप्स। तो ये एक क्रिटिकल एरिया है जो हमको समझना चाहिए कि ये क्रिटिकल है हमारे लिए, और हमको कैसे दूसरों के साथ अच्छे से रहना है फैमिली में, और रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करना है ये सीखना है हमको। और उसके बाद हमारे फिज़िकल वेलबींग और हेल्थ, ये बहुत ही क्रिटिकल है। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस नो कि अगर हम बीमार होते हैं तो फिर नथिंग एल्स मैटर्स। तो हम अपने को भी परेशान करते हैं और दूसरे भी परेशान हो जाते हैं हमारी वजह से। इसलिए हमको वी हैव टू टेक गुड केयर ऑफ़ आवरसेल्व्स। और हम एक्सटर्नल का ख्याल तभी रख सकते हैं अच्छे से जब हम इंटरनल का ख्याल अच्छे से रखेंगे। तो इफ़ वी आर सॉलिड फ्रॉम इनसाइड, हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, एक्सटर्नल विल ऑल्सो बी हेल्दी एंड सॉलिड। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट एरिया विच इज़ सोशल। तो सोशल में अगेन इफ़ एवरीथिंग एल्स इज़ अंडर कंट्रोल और सारे बाकी एरियाज़ हमारे अच्छे से चल रहे हैं, तो देन वी कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, वी कैन डेवलप एन एक्सपर्टीज़ इन सम एरिया। हमारे अगेन दिस कनेक्ट्स बैक टू आवर मेंटल क्रिएटिव एंगेजमेंट एंड देन करियर एंड वर्क एंगेजमेंट, और एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सर्विस वी प्रोवाइड टू पीपल। तो उसके बेस पे वी विल हैव इन्फ्लुएंस। इफ़ वी आर सक्सेसफुल इन ऑल एरियाज ऑफ आवर लाइफ देन वी कैन इन्फ्लुएंस अदर पीपल। Other people will look up to us and want to know from us and learn from us, and we can contribute to their lives. So this is what I wanted to share in today's episode, and because I think there's a critical need for people to understand how to organize their lives, how to live successful lives, कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारें और कैसे चार्ज लें अपनी लाइफ का। और ये जो 7 एरियाज़ हैं, लेट मी स्पिरिचुअल, मेंटल और क्रिएटिव एंगेजमेंट, वर्क और करियर, एंड फाइनेंशियल और वेल्थ, रिलेशनशिप्स, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ एंड वेलबींग एंड सोशल इन्फ्लुएंस। ये जो 7 एरियाज़ हैं, अगर हम अपना लाइफ को इन एरियाज़ में बांट के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं तो देन दिस इज़ वन वे टू बिकम सक्सेसफुल और ऑर्गेनाइज योर लाइफ फॉर सक्सेस। और ये एरियाज़ ऐसे हैं, इनमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में इफ़ यू आर वीक देन अदर पीपल विल इन्फ्लुएंस यू। तो ये 7 एरिया ऐसे क्रिटिकल एरियाज़ हैं जहाँ 7 पे आपको काम करना है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट ऑल ऑफ देम एंड देन nobody can influence you, nothing can influence you. So you will have control of what influences you or what doesn't influence you. So I wish you all the best, and as always I look forward to hearing your thoughts and comments, and I really enjoy that. And if you found value, please help spread the word, share and subscribe. So till next time, take good care.